Good morning, students. In the previous class, we have discussed about Rajya Sabha, what is the tenure of Rajya Sabha, and also we have discussed about the functions of the Parliament. Today, we are going to study about the executive, and in this, it includes the President, the Vice President, the Prime Minister, and the Council of Ministers. So, we are going to study about all the topics in great detail. The executive. Basically, executive consists of president, vice president, prime minister, and the council of ministers. Firstly, we are going to study about president. The president is the head of the state, but the power of president are mostly ceremonial. So, the president is also called nominal head of the state. Okay, the prime minister and his council of ministers have the actual power. Actually, the power lies within prime minister and the council of minister and his council of minister. The president is elected by members of an electoral college consisting of elected members of both the houses of parliament and the legislative assemblies. द एग्जीक्यूटिव क्या होता है? ये एग्जीक्यूटिव में जो है आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। और प्रेसिडेंट जो है वो आपका हेड ऑफ द स्टेट होता है, और प्रेसिडेंट के जितने भी पावर होते हैं वो सेरिमोनियल होते हैं। प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट भी बोला जाता है, और जितने भी पावर होती है, एक्चुअल पावर जो होती है वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है उनके पास होती है। प्रेसिडेंट को जो है इलेक्ट किया जाता है, जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स होते हैं, जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं हाउस बोथ, मतलब अपर लोअर दोनों हाउस के जो मेंबर्स होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर, वो और लेजिस्लेटिव असेंबली, ये जो होते हैं ये लोग मिल के जो है इनका प्रेसिडेंट का को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। Qualifications. To become the president of the country, a person must be a citizen of India, be 35 years or above, be eligible to become a member of parliament, not hold any office in the government, and not be bankrupt or mentally unsound. The president serves for a period of 5 years. After 5 years, he or she can be re-elected or a new president gets elected. अगर हम प्रेसिडेंट के लिए जो क्वालिफ़िकेशंस रिक्वायर्ड होती हैं, अगर कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो वो पहला तो क्वालिफ़िकेशन में आता है कि वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, उसकी एज 35 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, वो एलिजिबल होना चाहिए जिससे कि वो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट बन सके, और वो पर्सन जो है कोई भी जो ऑफिस है, ठीक है, कोई भी जो गवर्नमेंट है उसमें किसी ऑफिस में नहीं होना चाहिए। वो व्यक्ति जो है वो पागल या फिर दिवालिया, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है वो पागल नहीं होना चाहिए। जो प्रेसिडेंट है वो 5 इयर्स के पीरियड के लिए जो है वो चुने जाते हैं। 5 साल के बाद जो भी प्रेसिडेंट है उनको या तो फिर री इलेक्ट किया जाएगा या फिर एक नया प्रेसिडेंट को जो है वो इलेक्ट किया जाता है। प्रेसिडेंट हमारे राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास जो है दो तरीके के पावर होते हैं, एक तो लेजिस्लेटिव पावर होता है, दूसरा एग्जीक्यूटिव पावर होता है। इफ़ वी टॉक अबाउट लेजिस्लेटिव पावर्स, देन द प्रेसिडेंट समन्स और प्रोरॉग्स और एंड्स ऑल द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड एड्रेसेस द फर्स्ट सेशन। He or she can nominate the member to the parliament. She can dissolve the parliament on the advice of the council of ministers. Bills can become laws only after the president's assent. A money bill requires the president's permission before it can be introduced. The president calls a joint session of the two houses to solve any disagreement over a bill. And sometimes when the parliament is not in session and it is very important for the government to take some crucial decision or pass some crucial law, in such kind of cases the president has the power to issue special law or ordinance, and the ordinance has to be approved by parliament once it begins in इट्स सेशन। लेजिस्लेटिव पावर में सबसे पहला पावर ये होता है, जो प्रेसिडेंट होता है वो समॉन करता है, फिर प्रोरॉग करता है या फिर एंड करता है जितने भी सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, और एड्रेस करता है सबसे पहले सेशन को। प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो नॉमिनेट कर सकता है जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के उनको, और साथ ही साथ वो डिज़ोल्व कर सकता है पार्लियामेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे,
बिल तभी लॉ बनते हैं जब प्रेसिडेंट का असेंट मिलता है उन्हें, तभी। मनी बिल हमेशा जो है सबसे पहले प्रेसिडेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है इंट्रोड्यूस होने से पहले। प्रेसिडेंट जो है वो एक जॉइंट सेशन दोनों हाउसेस लोकसभा राज्यसभा को बुला सकता है, कोई भी डिसएग्रीमेंट है बिल के ऊपर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पार्लियामेंट जो है वो सेशन में नहीं होती, तो उस टाइम पे अगर ऐसा होता है कि बहुत ज़रूरी हो, बहुत क्रूशियल हो कि गवर्नमेंट जो है किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन या फिर कोई इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में इम्पॉर्टेंट होता है, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो स्पेशल लॉ या फिर ऑर्डिनेंस को इशू कर सकता है, और ये ऑर्डिनेंस जो है दोबारा से अप्रूव होता है जबकि पार्लियामेंट सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। Executive powers. All executive powers of the state are vested in the president. The president appoints the prime minister and the central council of ministers on the prime minister's advice, judges of the Supreme Court and high courts and governors of the states. The president is the supreme commander of our defense forces and appoints the chiefs of the army, navy and the air force. He or she can pardon and reduce the sentence of a person sentenced by a court. Any death penalty can be altered, pardoned by him or her. He or she appoints the election commissioners and comptrollers and general and auditor general. He also looks after the administration of the union territories. When there is a failure of the constitutional machinery in a state, he or she can assume any of the functions of the government of that state. The president can proclaim a state of emergency in the country if he/she feels that the security of the country is threatened by war or external aggression or any armed rebellion. Basically, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के क्या क्या होते हैं कि जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं स्टेट्स के वो जो है वेस्टेड होते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर और जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे जो है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, गवर्नर, इन सब का अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट ही करते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो एक सुप्रीम कमांडर होता है हमारी डिफेंस फोर्सेस का, और ये जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो चीफ होते हैं उनको भी अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो पैर्डन माफ़ कर सकें, या फिर जो कोई अगर किसी को सज़ा मिली है कोर्ट के थ्रू तो उसकी सज़ा को कम कर सकें, और कोई भी डेथ पेनल्टी जो है प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो या तो उसको एल्डर कर सके या फिर क्षमादान दे सके। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स को, और जो कॉम्प्ट्रोलर और जनरल ऑडिटर जनरल होते हैं उन्हें भी। और प्रेसिडेंट जो है वो लुक आफ्टर करते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है यूनियन टेरिटरीज़ का, उससे जब कभी भी जो है कोई फेलियर होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी में किसी भी स्टेट में, तो उस टाइम पे जो है प्रेसिडेंट वो अज्यूम कर लेते हैं, और प्रेसिडेंट जो है जो उस गवर्नमेंट का जो फंक्शन है उस स्टेट का वो अज्यूम करते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो प्रोक्लेम करते हैं कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी अगर कंट्री में उन्हें ये फील होता है कि जो सिक्योरिटी है कंट्री की वो थ्रेटन हो रही है बाई या तो वॉर की वजह से, या फिर कोई एक्सटर्नल एग्रीगेशन है, या फिर कोई आर्म रिबेलियन है उसकी वजह से। The Vice President. The Vice President is elected by an electoral college consisting of members of both the houses of Parliament. He/she must be a citizen of India, not less than 35 years of age, and eligible for election as a member of the Rajya Sabha. His term of office is 5 years. The Vice President is the ex officio chairman of the Rajya Sabha and acts as president when the president is unable to carry out his or her functions. So basically हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उन्हें कौन इलेक्ट करता है? जो इलेक्टोरल हाउस होता है जिसमें मेंबर होते हैं पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के। जो वाइस प्रेसिडेंट है, अगर किसी को वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो सबसे पहली जो क्वालिफिकेशन है वो ये होती है कि वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, और उसकी एज जो है 35 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए। वो एलिजिबल होना चाहिए राज्यसभा के इलेक्शन जो हो रहा है उसका एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, उसके लिए वो एलिजिबल होना चाहिए। और जो वाइस प्रेसिडेंट का जो टर्म ऑफिस, मतलब जो टेन्योर होता है, टाइम पीरियड होता है, वो 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होता है राज्यसभा का, और एक्ट करता है प्रेसिडेंट की जगह पे, जब प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करता है जब प्रेसिडेंट अनेबल होते हैं अपने फंक्शंस को कैरी आउट करने में। द प्राइम मिनिस्टर. The Prime Minister is the leader of the majority party which forms the government. His or her functions are as follows. The first function is he or she selects the member of the Council of Ministers for appointment by the President. सो बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लीडर होता है, जो मेजॉरिटी पार्टी जो भी फंक्शन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती है उसका लीडर जो होता है उसे वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं।
और जो फंक्शन होते हैं प्राइम मिनिस्टर के वो कुछ इस तरह है। सबसे पहला फंक्शन क्या है कि वो सेलेक्ट करते हैं जो मेंबर होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, जिससे कि उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकें। He or she allocates portfolios to the ministers that he or she distributes the charge of different departments of the government among his or her council of ministers. He/she presides over the meetings of the council of ministers. He or she coordinates the working of different ministries and is also the chief decision maker. Okay, so basically जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एलोकेट करते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मीनिंग होता है कि जो चार्ज होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, वो प्राइम मिनिस्टर ही एलोकेट करते हैं मिनिस्टर्स को, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चार्ज डिफरेंट डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट के अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो प्रिसाइड करते हैं मीटिंग्स में जो भी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, और वो उन्हें कोऑर्डिनेट करते हैं जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ होती हैं उनकी वर्किंग को, और साथ ही साथ जो है वो चीफ डिसीजन मेकर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर ही जो है वो चेयरपर्सन होते हैं नेशनल प्लानिंग कमीशन के, जो कि इंस्ट्रूमेंटल है इकोनॉमिक एडवांसमेंट, जो कंट्री का इकोनॉमिक एडवांसमेंट है उसके लिए। प्राइम मिनिस्टर एक्ट करते हैं एक लिंक की तरह बिटवीन प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में, एक लिंक की तरह से प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक्ट करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर कम्युनिकेट करते हैं प्रेसिडेंट से अबाउट जितने भी डिसीजंस होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, वो जो भी रिलेटेड होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है कंट्री का उससे, और प्रपोजल्स जो होते हैं लेजिस्लेशन के। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कंट्री को हाई लेवल मीटिंग्स में, और जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है अटेंडेंस की, जो कि अटेंडेंस उस पर्सन की अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट होती है जो कि हाईएस्ट गवर्नमेंट ऑफिस हो, तो वहाँ पे जो है प्राइम मिनिस्टर ही कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमेशा एड्रेस करते हैं नेशन को जब भी कोई नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड इशू होता है उस टाइम पे। प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने जो डिस्क्रिशन होता है ओवर डिस्पोजल, वो दो नेशनल फंड से जो है वो यूज़ करते हैं। पहला तो होता है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, और दूसरा होता है नेशनल डिफेंस फंड। ठीक है, सॉरी, नेशनल डिफेंस फंड जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है जो भी फैमिलीज़ हैं उनको रिलीफ देने के लिए, जो कि नेचुरल कलामिटीज़ जैसे कि फ्लड, साइक्लोन या अर्थक्वेक में, या फिर जो विक्टिम्स है मेजर एक्सीडेंट्स और रियोट्स के, उनको दिया जाता है ये डिफेंस फंड। ओके, तो ये सारे जो है क्या थे, ये सारे जितने भी मैंने अभी आपको पॉइंट एक्सप्लेन किए, ये सारे फंक्शन थे प्राइम मिनिस्टर के। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, इसमें कंप्राइज करता है कैबिनेट मिनिस्टर और जो स्टेट के मिनिस्टर्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट चार्ज जिनके पास होता है, और वो जो कैबिनेट मिनिस्टर और डिप्यूटी मिनिस्टर्स के साथ काम करते हैं वो वाले स्टेट मिनिस्टर्स भी होते हैं। ओके, जो रियल पावर होते हैं एग्जीक्यूटिव की वो लाई करती है प्राइम मिनिस्टर में, और साथ ही साथ उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसमें एग्जीक्यूटिव जो है वो वर्क करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट जो होता है गवर्नमेंट का उसके थ्रू, जिन्हें हम पोर्टफोलियो कहते हैं, जैसे डिफेंस, फिनेंस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और रेलवेज़ में। प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो वर्क करते हैं एक टीम की तरह, जो कि किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के लिए, कोई भी जो डिसीजन पार्लियामेंट के थ्रू लिया जा रहा है उसके लिए। इसका मतलब है कि अगर एक मिनिस्टर जो है, किसी भी एक मिनिस्टर पे अगर ऐसा लगता है कि अपोजिशन ने अपनी फेथ जो है, भरोसा जो है वो खो दिया है, तो उस टाइम किसी रीज़न की वजह से, तो उस टाइम पे अपोजिशन जो है एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो इनिशिएट कर सकता है अगेंस्ट गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट अगर फेल हो गई उस मोशन को डिफेंड करने में, तो उस टाइम पे जितना भी जो भी इंटायर काउंसिल है मिनिस्टर्स की उन्हें रिज़ाइन करना पड़ता है। एग्जीक्यूटिव जो है वो उसे असिस्ट करती है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, जिन्हें हम ब्यूरोक्रेसी या फिर सिविल सर्विस बोलते हैं, और इनका जो ये एम्प्लॉय किए जाते हैं गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि इन्हें मिनिस्टर्स को असिस्ट करना होता है जो भी पॉलिसीज़ है उनको फॉर्मुलेट करने के लिए और साथ ही साथ उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए। ब्यूरोक्रेसी या फिर जो सिविल सर्विस होती है ये कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पोजीशन को पॉलिसी मैटर्स में होल्ड नहीं कर सकती, और ये सिर्फ हेल्प करते हैं जो भी पॉलिसीज़ है उनकी ड्राफ्टिंग में और साथ ही साथ उनके इम्प्लीमेंटेशन में। डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, मतलब ये जो पावर का डिवीज़न है सेंटर और स्टेट के बीच में, उसके बारे में देखते हैं। इंडिया के पास जो है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो एक गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल लेवल पे होती है और दूसरी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट होती है। कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवाइड किया है सब्जेक्ट्स को लॉ मेकिंग के लिए, पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के लिए।
तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं वो 3 लिस्ट में मेंशन किए गए हैं। पहला तो यूनियन लिस्ट है, दूसरी स्टेट लिस्ट है और तीसरी कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए होते हैं, जो कि हमें नीड होती है यूनिफॉर्म पॉलिसी थ्रू आउट, जो कंट्री के लिए ज़रूरत होती है उसके लिए होते हैं। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और बैंकिंग, कम्युनिकेशन और करेंसी जो है वो इंक्लूडेड होती है यूनियन लिस्ट में। स्टेट लिस्ट जो है वो कंटेन करता है उन सब्जेक्ट्स को जो कि स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस के लिए होते हैं, जिसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाती है। पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और इरिगेशन जो है वो जो है आपके स्टेट लिस्ट में आते हैं। कंकरेंट लिस्ट में जो है वो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कॉमन इंटरेस्ट होते हैं बोथ यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन और सक्सेशन। अगर कभी भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है या फिर कोई भी लॉ जो है बनाया जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट पे, तो उस टाइम पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। सब्जेक्ट जो कि इसमें से ना ही यूनियन, स्टेट या कंकरेंट लिस्ट, इन तीनों लिस्ट में नहीं आते, तो जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और डुअल सिटीजनशिप, ये सारे जो है एक और लिस्ट है रेसिड्यूअरी लिस्ट, उसमें जो है इनको मेंशन किया गया है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।